Monomers of proteins. Amino acids are the monomeric units of proteins through which or the combination of which organic compound proteins are made by the help of different process. We have translation, we have transcription, we have different process through which by attaching with ribosome it forms protein. Clear hai? Basically, if we define organic acid, what I can say, amino acid. Basically, we will write it as AA. It stands for amino acids. Yes or no? AA means amino acids. Wherever I write AA, it means amino acid. So take care of it. Basically, amino acids can be defined as these are the organic compounds containing an amino group. Obviously, we have amino acids. That means it also have an amino group, and it is an acid. That's why it will also have a one acidic group. Means to have an acid, we have to we can have two different functional group. Yes or no? Yes, sir. So amino acids basically are the organic compounds containing amino group as well as acidic group. Clear hai? Amino acids are organic compound that is present in the living organism and which have obviously this is amino acid, so it should have an amino group containing amino group, and it is an acid, so it will also have it should also have an acidic group like carboxylic group. Yes or no? Yes, sir. An acidic group. इतना तो क्लियर है. Basically, amino acids can be defined as they are the substituted methane. Have you learned the structure of methane? Yes, sir. These are the substituted methane. It means in methane we have different we have four what we can say valency. In carbon we have 4 hydrogen, and all those hydrogen are substituted with some other Single like bond. yeah, whatever the hydrogen is present, basically methane is somewhat like this. Yes or no? ये स्टेज सबको पता है क्या? बेसिकली क्या होगा इसमें कि इन सब के हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट करके we have to put another functional group. It doesn't mean that we should remove all the groups. मतलब हम लोगों को सारे हाइड्रोजन हटाना नहीं है. बेसिकली अपने को उसको कायरल कार्बन तक पहुंचाना है. एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कायरल कार्बन? All the valencies are fulfilled of carbon. कायरल कार्बन आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? तो सब साइड के डिफरेंट कार्बन, तो मतलब चारों कुछ ना कुछ किसी तो अटैच रहेगा कार्बन. मतलब कि the valency are fulfilled by different functional group, different Yes, groups. sir. It will not have any two groups should be same. If there is one is hydrogen and remaining 3 should not be hydrogen. No 2 groups should be same. That Sir. carbon is known as हाँ बोलो. सर बट अमाइनो में भी आता है ना, 2 हाइड्रोजन आ जाता है. So it is an exception, and it doesn't come in the category of what we can say chiral carbon. And chiral carbon is the property which rotates the light. If we put on the light on the chiral carbon and chiral compound, it will rotate the light from either lever rotatory or dextrorotatory. Basically, it is not in our syllabus. You will do it in your chemistry syllabus. ठीक है ना? तो फिलहाल आपको इतना जानना है कि बस इतना जानना है कि ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल कार्बन होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. इट मींस व्हेनेवर वी पुट लाइट इट विल रोटेट either lever rotatory or dextro rotatory. क्लियर है इतना क्या?
So basically amino Yes, acids sir. are substituted methane, and these hydrogen of the methane is substituted by different functional group. Clear है क्या? हाँ sir. So that it will act as a chiral carbon. Since chiral carbon are those carbon which have all four valency are completed by different functional group. Clear है क्या? बोलो यार. हाँ sir. It will have chiral carbon. It means these are optically active. But we have an exception, that name is glycine, and it is the simplest amino acid. Less than this, no any amino acid exists except glycine. बोलो यार. And this carbon, where, for example, this is carbon and this is carboxylic group, and this is NH2 group, and this is hydrogen group, and this is R group, and R group is variable group. This is hydrogen and this is R. R may be any alkyl group. Clear है क्या आप लोगों को? हाँ sir. This is R group and R group is variable. It is variable, and whenever that carbon attached to functional group are known as alpha carbon. So this carbon is known as alpha carbon. Clear है आप लोगों को? इतना तो आप लोगों को पढ़ा होगा ना कि the carbon at next to functional group, that is known as alpha carbon. पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ सर. हाँ, तो फिलहाल इतना लिखें आप. सर मत करिए सर. हो गया. तो आप लोग चलो जिसका नहीं हुआ उसको जल्दी लिखो. Which are fulfilled by different functional group. इतना क्लियर आप लोगों को? हाँ बेटा. Chiral carbon and those chiral carbon in which we put light, it will rotate the light either levo rotatory or dextro rotatory. मतलब chiral carbon वो कार्बन होते हैं जिन पर लाइट पड़ने पर वो लाइट को रोटेट करते हैं, वो आधे डायरेक्शन, लेकिन अपना सेंटर से पास होने नहीं देगा. एंड उसका एक एक्सेप्शन है जो कि ग्लाइसिन है, जिनमें क्या होता है उसका हम लोग आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. एक तो हाइड्रोजन होता ही है, एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और आर ग्रुप की जगह उसका हाइड्रोजन होता है. ठीक है ना? इतना क्लियर है? सबने लिख लिया क्या इन सबको? सर एक सेकेंड ना सर. नहीं लिखा है क्या? सर मैं लास्ट वो बनाना सर, आर ग्रुप वेरिएबल लिख रहा था सर. हाँ सर हटा दीजिए सर. Yes sir. And these amino acids are substituent on same carbon, and that we call as alpha carbon, and so these amino acids are known as alpha amino acids. Clear है क्या आप लोगों को? Clear है sir. These amino acids substitute on the same carbon. For example, we can say these are alpha carbon, and so these acids are known as so-called alpha amino acids.
बोलो यार। And these are known as substituted methane. They are known as substituted methane since each hydrogen of methane is replaced by or substituted by different functional group. And the case where all the carbons are different, all the valencies are fulfilled by different functional group, that carbon is known as optically, or we can say chiral carbon, and those compound having chiral carbon known as optically active compound. Means when we put light on the compound, it will rotate the light. अब कैसे होता है ये आपको आगे बताया जाएगा, केमिस्ट्री में है सब आता है, बस आप लोगों को फिलहाल इतना जानना था, ठीक है ना? Yes, sir. And four substitution group may be four. हाँ बोल बेटा। सर वो डेफिनेशन में दिस अमाइनो के बाद क्या लिखा है आपने? These amino acids. अच्छा ये रिपीट हो गया क्या? These amino acids. ओके सर। These substituents group has four position. It may be it is hydrogen carboxylic group, amino group, and fourth one is variable group. Means it may be hydrogen, it may be methyl, it may be ethyl, it may be any alkyl group. And based on this variable group, basically each and every amino acid, these groups are same. This group should be same. मतलब सारे के सारे अमीनो एसिड्स में हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो ग्रुप हमें तो सेम होगा, लेकिन डिफरेंट जो होगा, जो वेरिएबल किसका होगा, वो आर ग्रुप का होगा. आर में भी हाइड्रोजन, उसको हम लोग ग्लाइसिन बोलेंगे, और इट में भी इथाइल, मिथाइल, एनी अल्काइल ग्रुप. बोलो यार. It may also have an alcoholic group. It may also have an alcoholic group. And based on the position or number of carbon in the nature of R group, there are different types of amino acids. इतना लिख लिया आप लोगों ने क्या? सर सब्स्टिट्यूएंट लिखना है एक. क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना? दिख रहा है सर. हाँ सर. सर. हाँ बेटा बोलो. सर अमाइनो ग्रुप NH लिखना है कि NH3+ लिखना है? सर क्योंकि वो NCERT में दोनों के बारे में लिखा है ना. हाँ. NCERT में सर वो नहीं ऐसा होता है. बेसिकली ये NH2 के फॉर्म में होता है. जब ये एक प्लस हाइड्रोजन को गेन करेगा ना, तो बनाएगा क्या अपना NH3+ बनाएगा ना. सर दोनों तो सेम है लेकिन फिर भी. नहीं सेम ऐसे इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कितना है, इसका वैलेंसी 2 हाइड्रोजन से फुलफिल है, बाद बाकी इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना. हाँ सर. लेकिन क्या होता है, आपको आगे पढ़ाया जाएगा, हम पढ़ेंगे, ये COH होता है ना, इसमें एक एसिडिक ग्रुप है. तो आपको पता होगा कि एसिड्स आर फेमस फॉर डोनेटिंग H+. यस सर.
दे आर नोन बाय देयर प्रॉपर्टी टू डोनेट H+. सो होता है क्या है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको इस अमीनो ग्रुप आवाज को ब्रेक इस हो रहा है। आई एम सेइंग दैट कि आप इस बात पे डिपेंड करता है कि अमीनो एसिड को आप किस मीडियम पे रख रहे हो। तो डिफरेंट मीडियम पे डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है। एसिडिक मीडियम पे रखोगे तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा, बेसिक मीडियम पे रखोगे तो एसिड की तरह एक्ट करेगा। वहीं पर अगर कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसको आप न्यूट्रल मीडियम में रखोगे तो वो अलग नेचर शो करेगा। मतलब न्यूट्रल मीडियम पे न्यूट्रल मीडियम शो करेगा, वो मतलब न्यूट्रल रहेगा। तो वहां पर क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, अगर आपको इतना पता है तो जब आप पूछ रहे थे आपको पता भी होगा कि वी हैव एन कंपाउंड और आयन दैट बी नोन एज ज्विटर आयन। नाम सुना है क्या? उसमें क्या होता हाँ है सर। कि जो NH2 ग्रुप होता है ना, क्या बोला मैंने, ये जो NH2 ग्रुप होता है, तो अगर मैंने वहां पर एक ऐसा मीडियम पे दे रखा है, अगर एसिडिक मीडियम पे रखा है, तो एसिडिक, अगर एसिडिक मीडियम में तो वहां पे H+ वहां पे प्रेजेंट होगा, बहुत सारे H+ होंगे। तो ये हाँ वाला रिलीज ना हो करके ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, NH3+। यस सर। तो इसका मतलब क्या कि अच्छा, बेस आर आल्सो नोन बाय देयर प्रॉपर्टी टू एक्सेप्ट H+, मतलब प्रोटॉन। क्या पता है आप लोगों को? हाँ सर। एंड बेस एसिड आर आल्सो नोन एज बाय देयर प्रॉपर्टी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टिंग व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रॉन। यस। हाँ, तो यहाँ क्या होता है, अच्छा यहाँ पे तो हमने उसको एसिडिक मीडियम पे रखा तो ये बेस की तरह बिहेव किया, क्लियर है आपको? वहीं पर मैं इसको बेसिक हाँ मीडियम सर, पे समझा। रखता, अगर बेसिक मीडियम पे रखता, बेसिक मीडियम बेसिस आर फेमस फॉर देयर प्रॉपर्टी टू डोनेट OH-, तो वहां पर क्या होता है, जैसे अपने पास एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से ले लो, NH2 है और ये कार्बन है, ऊपर में इसका और जो भी R ग्रुप और हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे OCOH है। अच्छा, बेसिक मीडियम पे OH- अवेलेबल है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे H+ रिलीज होने नहीं दे रहा है, तो इस तरह के इफेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। एंड कॉमन आयन इफेक्ट प्रोसीड्स द रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। पढ़ा है सर। आपने पढ़ा बेटा? हाँ सर पढ़ा है। पढ़ा है नहीं, सर। हाँ, तो कॉमन आयन इफेक्ट प्रोसीड्स द रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन वेयरएवर, जब क्या होता है, जबकि वेयरएवर कि जब हम लोग इसको बेसिक मीडियम पे पुट करते हैं तो वहां पे OH- अवेलेबल होता है। आपको पता होगा जहां पर OH- होगा, और हाइड्रोजन इतना मासूम बंदा है कि वो हमेशा H+ रिलीज निकालने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ से H+ रिलीज होगा तो मिलके क्या बनेगा, अपना H2O बनाएगा। इट मींस दिस रिएक्शन हाँ विल सर। प्रोसीड फॉरवर्ड। तो डिपेंड करता है ना कि हम किस मीडियम पे अमीनो एसिड को रख रहे हैं। So we have different kinds of amino acid. We may have also acidic amino acid. We also have basic amino acid. We also have neutral amino acid. We also have amphoteric amino acids. ऐसा अमीनो एसिड जो एसिड के भी तरह बिहेव करे और बेस के भी तरह बिहेव बेस की करे, तरह। those amino acids are known as amphoteric. प्रोटॉन। क्लियर है क्या? एम्फो मींस टू साइडेड, हाँ बाइफर्केटेड। इतना क्लियर है? सर ये एसिड में रखा बेसिक में रखा वो नहीं समझा। अभी आगे आएगा बेटा, अभी उसको सारा हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वर्चुअली। अपने सर अपनी एक बार ये समझा दो ना सर। ये दोबारा आएगा बेटा, फिलहाल आपको जो अच्छा जो ठीक पढ़ाई है। इतना क्लियर है ना, ये दोबारा आएगा। आगे बढ़ो क्या? और वो जब सर देखा था ये तो बहुत डाउट था उसमें, इसलिए पूछ लिया। तो अब जीटर क्लियर, आयन वाला आगे आएगा वापस। ज्विटर आयन वापस आएगा। हम लोग अमीनो एसिड को एसिडिक मीडियम पे रखे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको दिखाएंगे। फिजिकल मतलब फिजिकल नहीं, जो बोर्ड में हम लोग पढ़ेंगे, और व्हाट वी कैन से बेसिक मीडियम में न्यूट्रल, तीनों में हम लोग करके देखेंगे, ठीक है ना? ओके। इतना क्लियर आप लोगों को? आज हाँ सर। रितिका बेटा आपको क्लियर, डाउट क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। आगे बढ़े क्या? हाँ सर। रब करो इसे। हाँ सर। हाँ, so based on nature of R group, based on nature of R group, there will be different kinds of amino acid. Clear है क्या? Based on सर। nature of R group, and R group is a variable group. बोलो बेटा। हाँ। We have many amino acids.
अभी कोई ये नहीं पूछेगा कि इसमें सर कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, जब बॉन्ड की बारी है तो हम लोग बॉन्ड्स भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल किसके समझते बारे में? हैं। अरे अमीनो एसिड, अच्छा अमीनो एसिड होता क्या है? दीज आर द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन्स आर Proteins. पॉलीपेप्टाइड्स। Yes, sir. They are polypeptide, they are in the form of polymeric form, that's why they are present in the retentate form. जो polymeric form होगा, all the polymeric substances are present in the retentate portion, मतलब acid insoluble pool। नहीं समझे क्या? समझा बोलो सर। बेटा। हाँ, तो what I am saying that amino acids are linked to each other and form a polypeptide. These are amino acids। जब आप लोग 12th में पढ़ोगे प्रोटीन का सिंथेसिस, तो आपको मैं एक डिजिटल वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये प्रोटीन बनाते हैं जब प्रोटीन मशीनरी से राइबोसोम्स वगैरह। तो इस तरीके से अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है क्या? एंड वी हैव 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। लेकिन हम लोग यहाँ पर वी विल स्टडी ओनली दोज अमीनो एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन प्रोटीन। although we have many kind of amino acids, although there are many kind of amino acids, but we are interested in studying only those which are present in protein। clear है क्या आपको? हेलो, Yes, sir. क्लियर है क्या आप लोगों को? हम लोग उसी प्रोटीन्स के अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ मतलब जो सिर्फ जो प्रोटीन में पाया जाता है। बोलो बेटा। ओके सर। हाँ, तो ये इस तरीके से अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंक करके क्या बनाता है, एक पॉलीमेरिक फॉर्म बनाता है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। मान लो कुछ अपने पास ये वी है, दिस इज राइबोसोम एंड राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट। पढ़ा है क्या आप लोगों ने हाँ। सेल बायोलॉजी में? स्मॉलर सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। कुछ Yes, वो sir. जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, एमआरएनए वगैरह होता है, उसमें ज्वाइन होता है एक अमीनो राइबोसोम का जो छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों, एक तो एक नीचे जुड़ता है, एक ऊपर ये इसको बाइंड करता है। इस इधर से अमीनो एसिड आते हैं और यहाँ पे बाइंड करते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे कोडिंग की होती है ना टेम्पलेट स्ट्रैंड में, जिसको बोलते हैं कि जब हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे 12th में, इसको बोलते हैं क्या, कोडिंग स्ट्रैंड, जो कोड करेगा और अमीनो एसिड का सीक्वेंस में बनाते जाएगा और इधर से लीनियर चेन बनता जाएगा। नहीं समझा क्या बेटा? सर वो हेलो, अमाइनो एसिड आएगा, उसके आगे नहीं समझा। ये जो अपने पास आपको मैंने दो छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाया ना, दीज आर द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। डिपेंड करेगा कि वी आर इन विच सेल वी आर स्टडीइंग। प्रोकैरियोट्स हैव डिफरेंट सब यूनिट, यूकैरियोट्स हैव डिफरेंट सब यूनिट। अच्छा, मुझे कौन बताएगा, मुझे रितिका बताएगी कि यूकैरियोट में कौन सा राइबोसोम होता है? ATS, इसके सब यूनिट कौन कौन से होते हैं? 60S and 40S. ओके, मुझे तनुश्री बताएगी कि प्रोकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम होते हैं? नहीं पता बेटा? हेलो तनुश्री बेटा, हेलो सर। आपको नहीं पता क्या? सर क्या पूछा? प्रोकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? सर 70S, इसके सभी यूनिट का नाम क्या है? 50 and 30S। वेरी गुड। तो क्या आर्यन आप लोग सबको पता है ना? फरहान, समर, सुजाल? पता है सर। हाँ, तो दीज आर द ये सब छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका हम लोग डिटेल से मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस इतना फिलहाल जानना है कि एमिनो एसिड इधर से क्योंकि हम लोग एमिनो एसिड बॉडी में अवेलेबल होगा, चाहे तो हम लोग वी हैव डिफरेंट वन काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड, मतलब वी कैन ऑन ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। वन इज दैट इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी and we should not take it from outside, and those amino acids are known as non essential, क्योंकि हमें बाहर से लेने की जरूरत है नहीं, अब अपना बॉडी खुद ब खुद उसको बना रहा है। क्लियर है? and those amino acid which is not synthesized in our body, in our cells, Essential. and those amino acids should be required from outside, and that those are known as essential amino acid। क्लियर है क्या आप लोगों को? हाँ सर। समझा सर। हाँ हाँ,
सर तो ये आपने क्या बताया, राइबोसोम खुद ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना, तो राइबोसोम खुद ही बनाएगा ना अमीनो एसिड। अच्छा बेटा, बिना बिना कोडिंग के, बिना इंफॉर्मेशन के प्रोटीन कैसे बन जाएगा? हाँ सर वो है। हाँ, तो जो वो मैंने आपको लंबा सा ये स्टैंड बना कर दिया ना, इसमें उसका इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपने पढ़ा है ना, आपको आगे हम पढ़ेंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। तो ये सब आरएनए में अलग, आरएनए में इसका अलग किसी में ATGC होता है, किसी में AGCU होता है। बोलो यार। हाँ हाँ सर। ओके सर। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको पूरा, मतलब इस हिसाब से आपको पढ़ाया, बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको 12th में, मतलब जेनेटिक्स से जब पढ़ेंगे, चाहे आप 11th में पढ़े, आपको जहाँ पढ़ा जब पढ़ाया जाए, वैसे है आपके 12th में, जब पढ़ाया जाए आपको पढ़ने में जरा सी भी दिक्कत ना हो। जो भी टीचर पढ़ाए, चाहे मैं पढ़ाऊँ, जो भी पढ़ाए, तो आपके लिए इजीली समझ में आए, ठीक है ना? दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग मोर एंड मोर इन दिस चैप्टर, सिंस आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड whatever that is mentioned in our NCERT book। क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, तो ऊपर वाला आप लोग लिख लो। हो गया। फिलहाल घबराने, बस मैं आपको थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से प्रोटीन बनता है। इसका अपना अलग स्टैंड होता है, फिर वहां से एमिनो एसिड आगे फिर ज्वाइन करते हैं, फिर बनाते हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली वी हैव देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। किस बेस पे? अच्छा, हम लोग जो प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो जो ये 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड है, इसी के सीक्वेंस से वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। इसी का सीक्वेंस आगे पीछे, इसका पोजीशन आगे पीछे होकर के वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। क्लियर है क्या आप लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। there are 20 types of amino acids। अच्छा, किसी को पता है कि वे कितने अमीनो टाइप्स, कितने अमीनो एसिड क्या बोलते हैं इसको, असेंशियल होते हैं, कितने नॉन असेंशियल होते हैं? और 10 एसेंशियल 10 नॉन सर एसेंशियल। 10-10 करके होता है। सो उसमें भी 2 सेमी एसेंशियल है, फिर 8 एसेंशियल है। क्या बोले बेटा? सो 2 सेमी एसेंशियल है और 8 एसेंशियल है उसमें। अच्छा, आउट ऑफ दीज, अच्छा हम लोग इसके अमीनो एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो इन 20 अमीनो एसिड्स में, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में अपने पास कुछ असेंशियल होते हैं। असेंशियल आर दोज व्हिच वी हैव टू टेक फ्रॉम आउटसाइड। ऐसा नहीं कि आपको, या कभी भी आपको ऐसा कभी मिसकंसेप्ट नहीं करना है कि असेंशियल वो होते हैं जो अपने बॉडी में प्रेजेंट होता है। नो सर। essential are those which we have to take from outside, means it is not synthesized in our body। क्लियर है? हाँ सबको क्लियर है बात क्या? यस सर। Yes, Are sir. non-essential are those which we have, which is synthesized in our body and should not be taken from outside through our diet। तो आपको इसका एग्जांपल में 10 अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं, असेंशियल होते हैं, और 10 क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल। उसमें थोड़ा सा सब टाइप होते हैं। तो हम लोग थोड़ा बात करते हैं किसकी, असेंशियल अमीनो एसिड्स की। एसेंशियल एमिनो एसिड्स, आप इसको तो फुल फॉर्म लिखें। असेंशियल 9 होते हैं कि 10 होते हैं? क्या बेटा? असेंशियल अमाइनो एसिड्स। We have 10 amino acids are, those 10 amino acids are not synthesized in our body, we have to take it from outside। क्या कहीं आपने 9 पढ़ा है क्या? हाँ सर, मैं 9 बट रॉन्ग होगा सर, चलो। 9 कहाँ पढ़ा है आपने? सर पढ़ा था। चलो कोई नहीं, 10 होते हैं। अब वो इस बेसिस पे कह सकता है आपको, वो डिपेंड करता है ना कि कौन किस तरीके से इसको ऑब्जर्व करता है। बेसिकली वी हैव 20 एंड इन आउट ऑफ 20 वी हैव 10 दैट वी कैन से एसेंशियल, 10 इज नॉन एसेंशियल, ठीक है ना? तो इसका आप एग्जांपल याद लिख लो, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
क्लियर है क्या? हाँ बेटा, Yes, sir. दिस इसका अपने एसेंशियल अमीनो एसिड में ये आपको सारे नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना? थ्रियोनीन, नेक्स्ट भी है वेलिन, वी हैव ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। वेरी गुड। और बताओ, So देख के तो ये, arginine भी होता है ना इसमें? सर अभी हाँ इतना याद नहीं है। अच्छा इतना है, चलो सारा याद कर लेना आपको। 10 के मतलब 20 के 20 अमीनो एसिड आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? कल मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे सुनूंगा मैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। So ल्यूसीन हो 5 गया, मिनट का टाइम दे देना, इस लेक्चर में हो जाएगा। कोई नहीं, आप आपकी मर्जी, आप इसी दौरान भी लिखते लिखते याद कर सकते हो। ल्यूसीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, वेलिन हो गया, थ्योरोनिन हो गया। अब एक है नेक्स्ट मिथायोनिन, इट मींस समथिंग रिलेटेड टू मीथेन, मीथेन का ग्रुप कहीं ना कहीं उसमें आएगा, दैट्स व्हाई इट इज मिथायोनिन। वी हैव फेनाइल एलानिन, फेनाइल एलानिन, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना? ऑब्वियसली फेनाइल ग्रुप है, फेनाइल ग्रुप्स आर, यहाँ पे फेनोल आएगा। कुछ हाँ सर। आगे पढ़ेंगे ना, किसी में कुछ ऐसे अमीनो एसिड होता है जिसमें OH ग्रुप होता है, किसी में OH ग्रुप होता है, किसी में सम आर एरोमेटिक, किसी की मतलब एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग आएगा। क्लियर है क्या? वी हैव ट्रिप्टोफैन, एंड ट्रिप्टोफैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक बार आप एसेंशियल का भी आप डेफिनेशन लिखा दो ना सर। चलो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखो, जिसको जो लिखना है सब या सब लिख लो। एसेंशियल अमीनो एसिड आर दोज अमीनो एसिड्स which is not synthesized by our body and we should have to take it from outside with through our diet। समझ में आ गया? तो आप अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। हाँ बेटा, सर एक और बार बोलेंगे सर? सर आराम से बोलेंगे सर। चलो कोई नहीं, आप पहले इसको लिखो, मैं आपको दोनों का डेफिनेशन लिखा देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। वी हैव ट्रिप्टोफैन। सर हाँ नॉन बेटा, एसेंशियल और सेमी एसेंशियल के कितने मतलब वो आप रिपीट करेंगे? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एसेंशियल पढ़ रहे हैं ना, तो फिलहाल थोड़ा हम लोग एसेंशियल पे ध्यान देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जब नॉन एसेंशियल की बारी आएगी तो उसके बारे में बात कर लेंगे, जब आपकी बारी गई तो आपके बारे में बात कर लेंगे, इसमें हम लोग को क्या दिक्कत है? ठीक है ना? तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं एसेंशियल के बारे में, ठीक है ना? जो चीज पढ़ाया जा रहा है उस पर अगर आप ज्यादा फोकस करोगे, इफ यू फोकस मोर ऑन दोस थिंग, ऑन दोस टॉपिक, ऑन दोस पॉइंट, यू शुड गेट मोर क्लियर, you are able to understand more and more। Tryptophan, next we have arginine, and last we have histidine और histidine। ट्रिप्टोफैन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना? इस बार नीट 20 में सवाल पूछा गया था, एसेंशियल में कौन से और बेसिक में पूछा गया था, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है। तो वी हैव एसेंशियल में कौन कौन सा? थ्योरियोनिन आ गया, वेलिन आ गया, ल्यूसीन आ गया, आइसोल्यूसिन आ गया। कितने हो गए? 4 4 8 1 9, एक और रह गया 9। ना, एक लाइसिन और आता है, सर ये लाइसिन। आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन एक ग्रुप में आता है ना? एक ग्रुप में मतलब सर मतलब जैसे एसिडिक और बेसिक कैसे डिफरेंस? हम लोग पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे, बड़ा मत, एसिडिक भी पढ़ेंगे, बेसिक भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। तो वी हैव थ्योरोनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथायोनिन, फेनाइलिन, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अर्जिनिन, वी हैव हिस्टाइडिन। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो इसके नीचे आप इसका डेफिनेशन लिख लो। Amino acids which are not
synthesized by our body or in our body and have to take it from outside through our diet or in our diet. Called as essential amino acid. इसी में नेक्स्ट में क्या करना है आपको, नॉन एसेंशियल के लिए, नॉन एसेंशियल क्या करना है आपको, एमिनो एसिड विच आर नोट के बजाय नोट को हटा देना है, सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी इन आवर बॉडी एंड नॉट यहाँ पे जगह नोट लगा देना है, एंड नॉट टू हैव, और वी कैन से हैव नॉट टू टेक, वी कैन से हैव नॉट टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड थ्रू आवर डाइट, दैट इज कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड. लिख लोगे क्या आप लोग? हाँ Yes, sir. सर. आर्यन Yes, sir. लिख लोगे ना? Yes, sir. Amino acids which are not synthesized by our body, or we can say in our body, and have to take it from outside through our diet or in our diet, that is known as essential amino acids. For example के लिए आपको ऊपर में मेंशन्ड है थ्योरिनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथायोनिन, फेनिलएनालिन, ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन, हिस्टेडाइन, लाइसिन. ठीक है? पर मतलब हमको लेने चाहिए ना ये आउटसाइड से. इसको हम लोग बाहर से लेंगे तभी तो एसेंशियल है. नहीं समझा क्या? सर बाहर से लेंगे तो आपने लिखा है हैव नॉट टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड. बेटा मैंने इसका दूसरे वाले का नॉन एसेंशियल के लिए आपको यहाँ पे इसी में एडिट कर दिया मैंने. अच्छा ओके ओके समझा. हाँ जो ब्लू वाला मैंने लिखा है, जो आपका ये वाला है, ये नीला वाला जो भी कलर है, ये हम लोगों ने बाहर से लिया है, मतलब कि नॉन एसेंशियल वाला है. ये सेकंड डेफिनेशन है नॉन एसेंशियल का. क्या पूरा मुझे दोबारा फिर से लिखना पड़ेगा क्या? नहीं सर. समझ गया सर, मैं लिख लूंगा. फिलहाल आपको एसेंशियल का लिखना है जो उसमें रेड से पूरा लिखा हुआ है. जब आप नॉन एसेंशियल नेक्स्ट टॉपिक लिखिए नॉन एसेंशियल, उसमें से आपको क्या करना है, जहां जहां पर ब्लू है ना, नोट को हटा करके जहां पर ब्लू है वहां पर नोट लगा करके, दैट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड. भूमिका आप कुछ नहीं बोल नहीं रही है? तबियत खराब है क्या? तबियत ठीक हो गया आपका? हाँ सर. क्लियर है ना आप? हाँ सर. हाँ समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर समझ. ना टाइम पास हो रहा है? नहीं सर समझ. अब मैं सबसे पूछूंगा. अब टेस्ट जब नेक्स्ट में जब टेस्ट आएगा तब सवाल तो मैं अपने हिसाब से पूछूंगा फिर, और किसी का नंबर कम है तो फिर देखना. आगे बढ़ो क्या? हाँ सर. हाँ सर. सबका हो गया? शैल वी प्रोसीड? हाँ सर. अच्छा तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप नॉन एसेंशियल. नॉन एसेंशियल के नीचे ब्लू वाला चेंज करके लिख लो, ठीक है ना? तो इसका आप एग्जांपल लिखो. ग्लाइसिन, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ग्लाइसिन में दोनों हाइड्रोजन होते हैं. इट इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड. ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, उसमें था फेनाइल एलानिन, इसमें सिर्फ एलानिन है. इसमें वी कैन से सेरीन और सीरीन, ठीक है ना? एक है सिस्टीन, और एक बहुत फेमस है एस्पार्टिक एसिड, अपना नाम सुना होगा, एस्पार्टिक एसिड. यस सर. और वी हैव ग्लूटामिक एसिड. हाँ 20 ही तो है, 20 से आपका नाम आराम से याद कर सकते हो, ग्लूटामिक एसिड. और एक है अपने पास एस्पराजीन. कभी कभी आप लोग दवाई वगैरह खाते हैं ना, टैबलेट वगैरह लेते हैं, तो आप उसमें आप अगर आपको ऑब्वियसली पढ़ना तो आता होगा टेबलेट का नाम क्या लिखा हुआ है. जब उसका आप लोग कंपोजिशन देखोगे ना,
तो आपको ये सब नाम कहीं ना कोई आपको अमीनो एसिड दिखेगा। एस्पैरागिन, इन 20 में से कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। तो एस्परगिन दिखता है मोस्टली। हाँ, तो अलग अलग अमीनो एसिड का अलग अलग फंक्शन होता है। एक है अपने पास, एक तो था एक क्या था अपने पास, ग्लूटामिक एसिड, एक है ग्लूटामीन, एक है अपने पास टाइरोसिन, टाइरोसिन, वी हैव प्रोलीन। एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अच्छा, जो इन्हें जिनके पास अल्फा कार्बन होगा, मतलब जो सॉरी जिनके पास कायरल कार्बन होगा, हाँ वैसे अल्फा कार्बन कौन होते हैं, अच्छा जिनके पास फंक्शनल ग्रुप जो होता है, ठीक है ना। वी हैव 10 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इनमें से ग्लाइसिन को छोड़ करके, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ईच अमीनो एसिड, आपने एनेंशियोमर पढ़ा है ना, क्या सर? एनेंशियोमर, एनेंशियोमर बोलो यार, नहीं पढ़ा नहीं है? पढ़ा है। कोई नहीं, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इतना जानना है कि एक आइसोमर का टाइप है, आइसोमर तो पढ़ा होगा ना आपने, आइसोमेरिज्म, हाँ हाँ सर। उसी का एक टाइप है। उसमें आप लोग आइसोमर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को तभी पढ़ रहे हैं हम, चालू किए। हाँ हाँ, तो आपको इनएंशियोमर मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, इनएंशियोमर आप वहां पर आइसोमर के उस टाइप में पढ़ोगे जहां पर आप लोग बात करोगे कायरल कार्बन के बारे में। वेयर विल यू टॉक अबाउट, वेयर यू विल टॉक अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, कायरल कार्बन, मतलब वो एक्टिवली ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। फॉर एग्जांपल ये अपने पास क्या है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मैंने तो उसका ना इसका अरेंजमेंट थोड़ा अलग से कर दिया। ये हो गया NH2, ये हो गया हाइड्रोजन। थोड़ा चेक करो क्या ये कायरल कार्बन है या नहीं। है सर। वैसे हम लोग केमिस्ट्री तो पढ़ने, बस थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं आपको। इसलिए जो हम लोग इन जनरल जो अमीनो एसिड लिखते हैं ना, वो कुछ हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, NH2 कार्बन, COH, ऊपर हाइड्रोजन, और ये R ग्रुप। आर तो बेसिक अरेंजमेंट ये होता है अपने पास। इसलिए बोल रहा था कि जनरली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन जहां पर इसका हम लोग पोजीशन चेंज कर दिए तो वो कंपाउंड फिर अलग तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है ना। ओके। फिर वो अलग अलग इसमें टाइप में आ जाएगा, तो वो फिर डिफरेंट आइसोमर है। अब जब अलग अलग आइसोमर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो सकता है, यस और नो। तो आप हाँ लोग सर। केमिस्ट्री में आप लोग डिटेल से पढ़ोगे। अगर नो पढ़ना हो पाए तो फिर मेरे से पूछना, फिर आपको मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा। अपने को केमिस्ट्री भी आती है ना। दिस इज R ग्रुप एंड दिस इज COH ग्रुप। कुछ दोनों में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? और ये वाले को हम लोग बोलते हैं D फॉर्म, दैट्स व्हाई वी कॉल एज D अमीनो एसिड, एंड दिस इज कॉल्ड R फॉर्म, इसको बोलते हैं क्या, L अमीनो एसिड। मतलब D4 आई थिंक डेक्स्ट्रो होता है, L4 लेवो होता है, ठीक है ना। और मोस्टली प्रोटीन के पास L फॉर्म होता है, मोस्टली प्रोटीन के पास L फॉर्म होता है। और डी अमीनो एसिड, डी वाला फॉर्म, वो उस अमीनो एसिड में होता है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन बनाता है, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल किस चीज का बना होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। हाँ पेप्टाइडोग्लाइकन, और उसके एंटीबॉडीज में डी अमीनो एसिड पाया जाता है। तो फिलहाल ये सब इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना जानो, ठीक है ना। बोलो यार। इसके बाद ये आपका आप लोग लिख लिया क्या? नहीं सब वो स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया बस। यहां पर आप स्टार डाल के लिख लो इसकी जस्ट नीचे कि वी हैव 2 अमीनो एसिड्स दैट आर नोन एज सेमी एसेंशियल। एक है अपने पास अर्जिन, अर्जिनिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडाइन। फरहान तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया क्या?
are semi essential, हाँ सर। are known as semi essential. सेमी असेंशियल, सबको क्लियर दिख रहा है या फिर कुछ ज्यादा बोल्ड हो गया? क्लियर है सर। हाँ, उसके जस्ट नेक्स्ट में कंटिन्यू करके जहां मैंने लिखा कि अर्जिनिन एंड हिस्टीन आर सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, उसका रीजन लिख लेना। उसका रीजन ये लिखना है क्योंकि, अच्छा कोई बताएगा इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन क्या हो सकता है, कोई बताएगा? एनीवन? सो वो हमारे बॉडी में भी थोड़े मिलते रहेंगे इसलिए। क्या? तो अपना तो सेमी जितना एसेंशियल। कोई एक बोलो, कोई एक बोलो। बोलो बेटा। तो शायद से वो जितना होना चाहिए उतना बॉडी में नहीं है। हाँ, मैं अपने बॉडी में बनती तो है लेकिन कम बनती, इसका कंसंट्रेशन अपने बॉडी में कम होता है। सो वी कैन से इट फॉर्म्स इन लेस concentration in body। इसको मिक्सअप मत कर देना, जो यहां से लिखा है ना, यहाँ के बाद ये वाला पॉइंट कंटिन्यू करना है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? रेड वाला को रेड वाले के नीचे ही लिखना है। हाँ बच्चों, so have to take from outside। फरहान, तुम्हारा डाउट क्लियर है क्या? हाँ सर। रब करूं इसे क्या? अरे खास तौर से मैं आपको बता दूं, कहीं आपसे ये मत पूछो कि सर अपने पास तो अमीनो एसिड बहुत सारा होता है लेकिन आपने तो इतना ही पढ़ा है। बेसिकली वी आर स्टडिंग ओनली दोज अमीनो एसिड विच आर प्रेजेंट इन प्रोटीन। क्लियर है सबको? बोलो ना यार। हाँ सर। अच्छा, आप लोग अब भी कोई स्क्रीनशॉट ले रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और आर्यन? ऐसा मैं हाँ फिर सर। मैं तुम लोग का फिर नोट चेक करूंगा, याद रखना। फिर किसी ने ठीक अगर है सर। स्क्रीनशॉट किसी ने लेकर रखा तो फिर अच्छा नहीं होगा। सर अभी दिखा आपके दूं आपको? अभी मत दिखाओ, जब हम अचानक चेक कर लेंगे। मुझे सरप्राइज बहुत बहुत पसंद है, ठीक है ना? मैं अचानक कभी पीछे नोट्स मंगा लूं आपका। चलेगा क्योंकि सर। क्योंकि ऐसा होता है ना यार, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है नहीं, यू हैव नॉट एनफ टाइम, क्योंकि 11th सिलेबस इज थोड़ा समवॉट वास्ट सिलेबस एंड यू हैव टू कंप्लीट विद इन योर लिमिटेड टाइम। ओके रितिका, आप भी नोट्स बनाती है या फिर आप भी ऐसे स्क्रीनशॉट लेते हैं इन बच्चों की ऐसा तरह? मैं हमेशा बनाती हूँ नोट्स। वेरी गुड। समर, तुम यस सर, नोट्स बनाते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो? बनाता हूँ सर। स्क्रीनशॉट लेते हो ना? नहीं सर, बनाता हूँ। चलो कोई नहीं, मैं अचानक कभी तो नोट्स मंगाता हूँ। हाँ सर। चलेगा। इसको अब इरेज करूँ क्या? सुजाल, सुजाल बेटा, आप क्या करते हो? लिखता हूँ। नोट्स बनाते हो ना? हाँ हाँ सर। हाँ, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब आपको रिवीजन का टाइम आएगा तो आपको नोट्स ही काम आएगा, मैं तब काम नहीं आऊंगा। आपका नोट सिस्टम आपका दोस्त आएगा। इसको आगे बढ़ो, आगे बढ़ो क्या हम लोग? आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ, next we have on the basis of variable R group we have different types of for example थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये जो अपने पास R ग्रुप है ना, इसका वेरिएबल थोड़ा सा हम लोग वेरिएशन देखते हैं, थोड़ा फिर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना? लेकिन ध्यान रहे हम लोग उसी अमीनो एसिड, ओनली दोज अमीनो एसिड व्हिच आर इन प्रोटीन, व्हिच आर यूज्ड इन प्रोटीन। अगर R ग्रुप हाइड्रोजन हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? दैट वी कॉल एज अमीनो एसिड, इट इज नोन एज और कॉल्ड एज लाइसिन। ग्लाइसिन, जिनके पास दो ऊपर पे हाइड्रोजन और नीचे भी हाइड्रोजन होता है।
ग्लाइसिन, यही वो ग्लाइसिन है जो कि कायरल कार्बन नहीं है, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है क्या? हाँ सर। अगर मिथाइल ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे? एलानीन, सीरीन, अच्छा नहीं, एलेनिन। नहीं एलानीन, एलानीन। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो मतलब सीरीन। हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल मीन्स वहां पे OH ग्रुप तो आएगा ही आएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो आप इनके स्ट्रक्चर्स दिखाने वाले हो ना? सब दिखाऊंगा, चिंता मत करो आप, फिलहाल जितना पढ़ा उतना लिखो, ठीक है? अरे यार कुछ नहीं छोड़ूंगा, फिर आप ना आप लिखते लिखते पक जाओगे कि सर कितना लिखा रहे हैं, लेकिन आपको सारा चीज मेरा लिखा हुआ काम आएगा। सिंस आई नो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड क्या क्या पूछा गया, व्हाट कैन बी आस्क्ड, ठीक है ना? बोलो यार। यस सर। हाँ लिख लेगा आप लोग? चलो थोड़ा सा जगह बना है तो आप लोग थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर बना लो, या उससे पहले एक पॉइंट और लिख लो आप। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल of amino acid are essentially of the amino as well as carboxyl and R functional group. R फंक्शनल ग्रुप की वजह से इसका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन किया जाता है। बोलो यार। लिख लेंगे आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? सर 1 मिनट पीछे लेंगे। बेटा ऐसे बोलोगे ना फिर आपको छूट जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा स्लाइड को तो नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम होता है कि मैं इरेज करता हूँ। हाँ, जो इरेज किया हुआ चीज फिर वापस नहीं आएगा ना। लिख लिया सर। किसी का रह गया? 1 मिनट से। चलो आप लोग नेक्स्ट लिखो सम स्ट्रक्चर्स। या स्ट्रक्चर की जगह नेक्स्ट लिखो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एमिनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। सर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ, या फिर आप लोग लिखो टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड ऑन द, हम लोग एसिडिक बेसिक के बारे में पढ़ेंगे ना। अच्छा वी कैन से
based on number of amino group और carboxyl group we have different types of amino acid. बस ये अपना सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। पहला लिखो एसिडिक। सर रुके ना सर, थोड़ा आराम से। सर आप ये पेज हटा दो ना सर। हटा दूं, एक मिनट। सर हाँ बेटा, तो क्लास का टाइम कब तक है? कहीं जाना है क्या आप लोगों को? हाँ सर, मेरा क्लास रहता है ना इसी टाइम पे, इसलिए। कितनी बजे क्लास आपकी? सर मेरी थी 4 बजे से, बट फिर आप कितने बजे छोड़ने वाले थे? 5? अपनी क्लास तो 4 से 4:30 थी ना, तो मैंने आज था छुट्टी था, मैंने सोचा आज क्लास ले लूं आपका। नहीं सर, आप कब छोड़ रहे हो ये वाला क्लास? 5 तक ना? 5, 5:30 तो ले जाएगा। अच्छा, ओके सर। कोई प्रॉब्लम है तो क्या? 5, हाँ सर, एक्चुअली मेरा वो क्लास है और नया क्लास 5:15 से शुरू होता है। अच्छा, चलो कोई नहीं, 5, 5:30 से चलेगा, ठीक है। ठीक है सर, चलेगा। किस चीज की क्लास है? तो बायो की है, रेस्पिरेशन। हाँ, स्ट्रक्चर ना लिख करके आप लोग ये लिखो, अमीनो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। पहला लिखो एसिडिक। वैसे आप पूरा सर्च कर सकते हो कौन सा एसिडिक है, कौन कौन सा बेसिक है, ठीक है ना? हाँ यार बोलो। एसिडिक में आपको लिखना है, एक होगा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, मतलब इसका एसिडिक नेचर होता है, एस्पार्टिक एसिड। दूसरा लिखो बेसिक। आप ग्लूटामिक एसिड का पहले स्ट्रक्चर बना लो। This is NH2 COH as hydrogen, CH2 CH2 COH। क्लियर है क्या? दिस इज ग्लूटामिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? हाँ सर। और इनके पास क्या होगा कि एमिनो जो एसिडिक एमिनो एसिड होगा, इनके पास व्हाट वी कैन से 1 एमिनो एसिड ग्रुप होंगे और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होंगे। तो 1 एसिडिक और 1 बेसिक ग्रुप विल कैंसिल ईच अदर। जो नेट बचेगा वो क्या बचेगा? एसिडिक बचेगा। दैट्स व्हाई इट विल शो द नेचर ऑफ एसिडिक एमिनो एसिड। क्लियर है क्या आपको? समझा नहीं सर, वापस बोलिए ना। यहाँ पर कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? 2 है ना? हाँ, और यहाँ पे बेसिक ग्रुप कितने हैं? 1। तो इट मींस इट हैज 1 अमीनो ग्रुप एंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो 1 अमीनो एसिड ग्रुप एंड नेक्स्ट कार्बो एसिडिक ग्रुप विल कैंसिल ईच अदर। यस तो सर। नेक्स्ट जो बचेगा तो अपना इसलिए एसिडिक नेचर शो करता है। क्लियर है? जो नेट चार्ज इसमें क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि H+ यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सिंस एसिड आर, कभी भी आप कुछ भी कहीं भी केमिस्ट्री पढ़ो, आपको दिमाग में जुबान में हमेशा ये रहना चाहिए कि एसिड आर फेमस फॉर देयर प्रॉपर्टी टू डोनेट H+। क्लियर है क्या? और बेचारा हाइड्रोजन इतना दयालु, इतना रहमदिल है, जहां पर भी एसिड को जरूरत पड़ता है कि वो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ कर निकल जाता है।
और खुद पर अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। वो भी सोचता है ना कि अपने अंदर बेहतर है कि नेगेटिविटी भी हटाया जाए, अपने अंदर पॉजिटिव चीज लाया जाए। क्लियर है क्या? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूटामिक एसिड। सो लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाऊं तो जो उसमें कुछ इसका जो भी एमिनो एसिड ग्रुप होता है ना, इसमें क्या होता है, इट हैज 1 एमिनो ग्रुप, बोलो, एंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अच्छा, कौन सा सर का आपका क्लास है रितिका बेटा? सर वो मेरा दूसरा क्लास है ना। अच्छा चलो एक्स्ट्रा कोई बात हाँ। बेसिकली ऐसा होता है, ये NH2 ग्रुप हो गया ना इसका, और ये इसका हो गया COH ग्रुप। तो नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ाइए, चलेगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन गेन कर लेगा इससे, और यहाँ क्या बन जाएगा, COO माइनस बन जाएगा। एक का तो यूज हो गया, लेकिन जो एक बचा हुआ वो तो अपना एसिड का नेचर शो करेगा ना। दैट्स वाई इस पर नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज नेगेटिव होगा ना बेटा। सो अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाऊं तो इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड। बोलो यार, क्योंकि एनोड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ना। हाँ सर। सबको पता है क्या? यस सर। एक तो होता है केटाइन और एक होता है एनोड। इन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन एक जैसा है। एक होता है एनाइन कैथोड। और कैथोड। इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और ऊपर वाले पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। कभी कभी थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ आपको, ताकि आपको केमिस्ट्री में और जगह इजी पड़े, ठीक है ना। दिस इज नेगेटिव चार्ज, ये आपको कहीं 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 पे एक्स्ट्रा जगह पे लिख लो, ठीक है ना। तो सिंस इट हैज नेट नेगेटिव चार्ज, सो इफ वी पुट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, if we put in it in electric field, it will move towards, किधर मूव करेगा, एनोड। सिंस एनोड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ बेटा, एनोड हैज पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है कि नेचर में अपोजिट पोलैरिटी वाले चीज आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। क्लियर है ना? पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड टू नेगेटिव एंड नेगेटिव इज अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव। नेचर में यही होता है। बात बाकी आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है ना। इतना इतना लिख लिया क्या आप लोगों ने? तो एसिडिक में 2 आ गया। तो ये आपको कभी सवाल ये पूछ लेगा, which of the following is not एसिडिक एमिनो एसिड। तो आप कहीं आपको बेस वाला देख लेना, या फिर आप न्यूट्रल वाला देख लेना, या फिर ये सवाल पूछ लिया आपसे कि which one of the following is एसिडिक एमिनो एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये सब के सब आपके ये होगा, ठीक है ना। तो बाद बाकी जो नेक्स्ट जो बचे हुए रेस्ट एमिनो एसिडिक ग्रुप है वो आपको एग्जाम के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को क्या? हाँ बेटा। वो COOH में उसमें H क्यों निकल, एस क्यों निकाला? एसिड्स आर फेमस फॉर देयर प्रॉपर्टी टू डोनेट प्रोटॉन। तो H+ रिलीज कर दिया वो, तभी तो एसिड कहलाएगा ना। हाँ सर, और NH2 में एडिशन हो रहा है ना हाइड्रोजन का। क्योंकि उसको क्योंकि उनके पास क्या है, लोन पेयर है, और वो हाँ। चाहता है, वो भी तो चाहता है स्टेबिलिटी हो ना। वो चाह रहा है कि मुझे हाइड्रोजन मिले, लेकिन बेचारा हाइड्रोजन फ्री COH कार्बोक्सिल ग्रुप के पास ये फ्री है, मतलब चाहता है कि मैं मेरे से कोई ले ले, ये भी स्टेबल वो भी स्टेबल। बोलो ना यार। हाँ सर, समझा। इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या? कोई डाउट है क्या आपको? हाँ बेटा, नहीं सर। आगे बढ़ो। हाँ। फिर आपने वो क्या हुआ? तो वो नेट चार्ज नेगेटिव के बाजू में क्या लिखा है? बेटा आपने, अच्छा आपको तो 12th में नहीं हुआ। अरे EF फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा 9th 10th में तो पढ़े होगे ना, 10th में तो पढ़े होगे। हाँ सर, मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड, Yes, EF sir. फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। आपको फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्ट फॉर्म कभी नहीं लिखना है।
शॉर्ट फॉर्म आर नॉट ओनली अवेलेबल फॉर टीचर्स, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि आप भूल जाओगे फिर। याद रहे हाँ तो अच्छी सर। बात है, याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन भूल जाओगे आप, मुझे पता है ना, कभी ना, मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूँ ना, मुझे पता है। फिर बाद में अच्छा ये क्या ईएफ क्या था, ईएफ क्या था, इंपेरिकल फार्मूला पता नहीं और कौन कौन सा फार्मूला होता है, हाँ सर। बाद में मालूम चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, आगे बढ़ो क्या। हाँ सर। हाँ तो सर। लास्ट में एनोड के बाद क्या लिखा है? एनोड में, अरे एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, एनोड हाँ के सर, बाद समझे समझे। ब्रैकेट में पॉजिटिव लिखा हो। क्लियर है क्या। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट लिखो आप एल्केलिक, एल्केलाइन और बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है, बेसिक एमिनो एसिड्स। इसका मतलब क्या, अच्छा मुझे कौन बताएगा, फरहान बेटा तुम बताओ कि जो अपने पास बेसिक एमिनो एसिड है, इसमें कितने एमिनो ग्रुप होंगे, मतलब कितने एसिडिक ग्रुप होंगे, कितने बेसिक ग्रुप होंगे। बेसिक होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे एसिडिक होने के लिए क्या था कि कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर ज्यादा था। हेलो बेटा फरहान बताओ। हाँ सर। I am asking you that in basic amino acid number of amino group and number of acidic group में उसका नंबर क्या होगा, बेसिक का नंबर ज्यादा होगा, एसिडिक का नंबर ज्यादा होगा। बेसिक में बेसिक का ज्यादा होता है। तो मतलब कि जैसे अपने पास एसिडिक ग्रुप में, क्या बोला मैंने, जैसे अपने पास एसिडिक ग्रुप में एसिड का ग्रुप नंबर ज्यादा था ना, हाँ सर। तो मतलब वहां पे 2 एसिडिक ग्रुप था और 1 बेसिक ग्रुप था, और यहां पर क्या होगा, 2 बेसिक ग्रुप होंगे, 1 एसिडिक ग्रुप एसिडिक होंगे। ग्रुप। तो लिखो इट हैज 1 एसिडिक ग्रुप एंड 2 बेसिक ग्रुप। लिख ले क्या। हाँ सर। हाँ, तो इसका आप एग्जांपल लिखो, 1 बेसिक ग्रुप, 1 नहीं, 1 एसिडिक ग्रुप, एसिडिक ना लिख करके आप डायरेक्ट वो लिखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 1 एमिनो ग्रुप, सॉरी 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 2 एमिनो ग्रुप। बोलो यार, हेलो। तो इसमें क्या होता है कि NH2 है, मैं सिंपली ये एमिनो एसिड नंबर पता है, मैं सिंपली एक उसका एक सिंपल एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊं, सिर्फ मुझे जहां से एसिडिक और बेसिक का पता मालूम चले, ठीक है ना। ये NH2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया COH। Acid are known by their property to donate H plus and bases are known their property to accept H plus, ठीक है ना। चाहे तो OH प्लस देगा, OH माइनस देगा, या फिर H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये भी कुछ NH3 बन जाएगा, हाँ सर। और ये अपना हाइड्रोजन लूज कर देगा, ठीक है। इसमें नेट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, सो इट विल मूव और दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड ना, कैथोड। वेरी कैथोड। गुड, वेरी गुड, टुवर्ड्स कैथोड। आप लोगों को पता है यार, इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो आपने EF नहीं लिखा। चलो कोई नहीं, ये भी लिख देता हूँ, ये भी लिख दिया, ठीक है। और कैथोड में क्या होता है, कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज। आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ते रहो, आपको बहुत बहुत सारे शॉर्टकट सिखाऊंगा जो आपको पूरी जिंदगी में काम आएगा, ठीक है यार। हाँ सर। हाँ सर। इतना सारा शॉर्टकट कि आप पूरा जिंदगी में शॉर्टकट ही अपना लोगे। फिर फिलहाल बात करते हैं हम लोग हिस्टिडीन के बारे में। ये कौन सा एमिनो एसिड होगा? सर बेसिक ना? ऑब्वियसली बेसिक में एग्जांपल लिख रहे हैं तो बेसिक का ही होगा बेटा, हाँ बेसिक। अर्जिनिन। ये जो मैं आपको पॉइंट लिख रहा हूँ ना, लाइसिन। वेरी गुड, ये सब नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब नाम आपको ईच एंड एवरी एग्जांपल इज द क्वेश्चन ऑफ नीट। आपको 22 पड़ेगा ना, नीट 22। हाँ। हाँ सर। हाँ, तो आपको समझो कि नेक्स्ट में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। रेडी फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। सर आप ये ऊपर क्या बना रहे हो, मतलब ऊपर क्या बना रहा हूँ? वो NH2 के बाद? अच्छा, मैंने बताया कि आखिर इसमें ये ऐसा, ये बेसिक नेचर क्यों शो करता है, मैंने आपको समझाया। अरे एसिड यहाँ पर है, COH ग्रुप है, H+ रिलीज करेगा, ये H+ गेन कर जाएगा, तो ये NH3 बन जाएगा, ये NH3 बन जाएगा, ये CO- बन जाएगा, जिसकी वजह से नेट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अरे ये प्रॉपर्टी बेस की होती है, ये प्रॉपर्टी बेस की होती है। So if we put those amino acid on electric field, so it will move towards cathode. Since cathode है नेगेटिव चार्ज, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ मिलते हैं, नहीं पता है क्या? हाँ सर समझा। फॉर एग्जाम्पल अगर डे टू डे लाइफ में लूं तो मेल्स और फीमेल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दिस इज द नेचुरल फिनोमेना। सो जब ये नेचुरल फिनोमेना है तो एसिड और बेस पॉजिटिव और नेगेटिव, ये फिर अलग क्यों रहे? ये भी तो मैं भी पॉजिटिव से मिलूं, नेगेटिव भी कहता है मैं भी पॉजिटिव से मिलूं, दोनों आपस में मिलते हैं, तो दीज आर द फिनोमेना व्हिच इज नेचुरली ऑकरिंग, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ, आगे बढ़ो क्या? तो वो दूसरा अमीनो ग्रुप कहाँ पे जुड़ेगा, वो R वाले में? हम लोग सिर्फ पता है क्या क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ एमिनो ग्रुप की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ पर तो बचा हुआ है ना अपने पास, हाइड्रोजन बचा हुआ है ना अभी, हाँ। हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे ना। फिलहाल में ये बात कर रहे हैं कि एमिनो, ये एसिडिक कैसे है, बेसिक कैसे है, अच्छा ठीक। क्लियर है क्या? हाँ सर, मैं पूछा था मतलब स्ट्रक्चर में कैसे दिखेगा सर? स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ये अपने पास क्या है, COH ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन ग्रुप है, ये R ग्रुप है, क्लियर है क्या? हाँ। और ये R ग्रुप तो वेरिएबल है ना, हाँ सर। तो R ग्रुप कैन बी एनीथिंग। अच्छा ठीक। तो कार्बन का वैलेंसी 4 ही तो होगा ना यार, हाँ सर। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे तो जो मैंने बताया कि यहाँ पे हाइड्रोजन जहाँ पर आपका कार्बन की 3 वैलेंसी फुलफिल हो रही है, उसका मतलब नेक्स्ट वन क्या है, फोर्थ वन क्या है, कार्बन हाइड्रोजन होगा। तो बेचारा हाइड्रोजन तो इसलिए आपके पास अवेलेबल है, जहाँ पर वैलेंसी कम है तो पूरा कर रहा हो। जैसे आप लोग लिखते हो ना, व्हाट वी कैन से, जैसे लिखते हो ना बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हो, बेंजीन के स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे तो होता है बेटा, गलत बनाया क्या? तो क्या ईच एंड एवरी जगह आप हाइड्रोजन के मेंशन करते हो क्या? नहीं नहीं। तो बेसिकली इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन है, उससे यहाँ पर भी यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लियर है क्या? हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत? बोलो यार। नहीं आगे सर। बढ़ो, नेक्स्ट लिखो न्यूट्रल एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्या लिखना है, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। तीसरा हो गया ना, न्यूट्रल एमिनो एसिड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा,
1 एमिनो ग्रुप होंगे और 1 कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप लोग बोर्डिंग तो फिल नहीं करो यार। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप वरना और जगह बायोमोलिकुलर्स में ना सब मैक्सिमम टीचर बोलते हैं यार तुम लोग बोर्डिंग फील करते हो। अब मैंने सोचा कि नहीं, ये बायोमोलिकुलर इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि इसका यूज, इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा अच्छा खासा है और इसका स्कोप भी अच्छा खासा है। जब आप मेडिकल में, जब कॉलेज में जाओगे एमबीबीएस करने के लिए, तो वहां पे आपको एक बायोमोलिकुलर, एक आपको बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। तो जो अपने पास रेस्ट बचे हुए हैं एमिनो एसिड है ना, वो सब के सब इसी में आते हैं। रेस्ट 15 कम्स इन दिस कैटेगरी। ठीक है, कितना हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा अभी? 5 हो गए। 5 पढ़ा ना, तो 15 बचा, 15 में से सबके सब ये हो गया। ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, ट्रिप्टोफैन, अच्छा इसको थोड़ा एक नेक्स्ट 4th पॉइंट लिखो। एरोमेटिक मींस बेंजीन रिंग होगा क्या? होगा। एरोमेटिक एमिनो एसिड। अभी ज्यूटेराइन के बारे में आया नहीं, हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, घबराओ मत। तो टायरोसिन इसमें आ जाएगा, टायरोसिन। फेनाइल एनालिन, ट्रिप्टोफैन क्या आएगा ना सर? वेरी गुड, आपको तो पता है, कहीं पढ़ रखे हो क्या? हाँ सर, किधर किधर पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ा है? सर जियाद सर ने पढ़ाया था ना। अच्छा, आप लोग ये चैप्टर पढ़ रखे हो। अच्छा, ये तो अपने पास हो गया एरोमेटिक। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? एमिनो एसिड ऑन डिफरेंट मीडियम। ठीक है ना? थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ऑड आयन इफेक्ट, इवन कॉमन आयन इफेक्ट। केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है आप लोगों को? ऋषभ सर। सर आपने मिटा दिया क्या? बैक करो ना, वो एरोमेटिक और लिखना था। एरोमेटिक एमिनो एसिड टायरोसिन, फेनाइल एनालिन और ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एमिनो एसिड हाँ सर, ऑन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ बेटा, सर एक सेकंड रुकेंगे सर, क्या हो बेटा? तो लिख रहा था सर। जल्दी लिखो। एमिनो एसिड ऑन व्हाट वी कैन से, एमिनो एसिड ऑन डिफरेंट मीडियम। लिख लिया क्या? आगे बढ़ो। यस सर, यस सर। एमिनो एसिड ये किस डिफरेंट मीडियम में किस तरीके से बिहेव करता है? ऑन डिफरेंट मीडियम। हम लोगों को जल्दीबाजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इजीली पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट समझेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है ना? पहला हम तीनों साथ में बात करते हैं। ठीक है ना? 3 कंटेनर हम लोगों ने लिया। ठीक है ना? वी हैव 3 कंटेनर। आप लोग भी अपना कंटेनर बनाओ, सीक्वेंस जैसे रखा हूं वैसे रखना। ठीक है ना? इसके अंदर अपने पास क्या है? इट हैज बेसिक मीडियम, and this is neutral medium. MED पे पावर M मीन्स मीडियम। आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखना है, मीडियम। दिस इज एसिडिक मीडियम।
अब होता क्या है, मैंने एक एमिनो एसिड यहाँ पर डाला है, अब NH2 लिखो या H2N लिखो, बात बराबर है। दिस इज R वेरिएबल ग्रुप एंड दिस इज हाइड्रोजन। इस तरीके से सब में बना लो आप। R वेरिएबल ग्रुप एंड दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दिस इज NH2 H2N और NH2, बात बराबर है। एंड दिस इज R वेरिएबल ग्रुप एंड दिस इज हाइड्रोजन। हाँ बेटा बताओ, हेलो हेलो। हाँ सर। awesome ये एसिड है ना यार, एसिड में क्या होता है, H+ होता है क्या? हाँ बेस में क्या होगा? OH minus OH। तो ये आप इसमें सराउंडिंग में बहुत सारे H+ होंगे। क्या आपको क्लियरली दिख रहा है ना, ये जो कलर यूज हो रहा है? हाँ सर एसिड है तो H+ होगा, एसिड है तो H+ होगा। क्या ये वाले COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप से H+ को रिलीज होने देगा क्या? देगा क्या? क्या बोल रहे आप? मैं पूछ रहा हूं कि इस मीडियम में वैसे ही बहुत सारा H+ अवेलेबल है, वैसे ही बहुत सारा H+ अवेलेबल है, क्या ये वाला H+ को रिलीज होने देगा? नहीं। नहीं। सिंस वी हैव ऑलरेडी क्राउडेड H+, क्योंकि पॉजिटिव में पॉजिटिव कैसे जाएगा? पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्शन। हाँ सर सर। बट मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन पूछा था तो आप बोले कि वो डोनर है तो फिर भी करेगा। कहाँ पर? सर वो आपको क्वेश्चन पूछा था ना, वो एसिडिक में जब लिखवा रहे थे, तो उसमें मैंने आपको पूछा कि COH से COO माइनस क्यों हुआ, मतलब तो वहां H+ दे रहा है। नहीं, अगर मैं एसिड को किसी सॉल्यूशन पर रखूं तो क्या वो H+ रिलीज करेगा? मैंने इस अमीनो, ये वाला अमीनो एसिड है, मैंने इसको इस ये जो कंटेनर है ना यार, कंटेनर में एसिड रखा हुआ है, हाँ कंटेनर सर में ऑलरेडी एसिड है और उसमें हमने एक अमीनो एसिड डाला है। ओके। अभी नहीं समझ में आया क्या आपको? हाँ हाँ सर समझा। नहीं समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया सर तो समझा। आप फिर आप मुझे समझाओ, मुझे भी समझाओ और रेस्ट अपने साथियों को समझाओ। सर मतलब वहां पे हम लोग कैसे सोचा नहीं था, बट यहाँ पे हमने मीडियम पकड़ा है कि हाँ एसिडिक मीडियम है, वहां पे कुछ हाँ कंसिडर नहीं किया था इसलिए। हाँ, तो वहाँ पे कोई मीडियम, सिंपली एक सॉल्यूशन, कोई सिंपली एक हाँ सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में मैंने एसिड को डाला, मतलब अमीनो एसिड डाला था। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है, उसमें हमने अमीनो एसिड को डाला है। मींस वी कैन से अमीनो एसिड पर लिखा है ना, अमीनो एसिड ऑन डिफरेंट मीडियम, मीडियम। हाँ सर समझ गया। क्लियर है? दिया आपको सवाल? यस सर। ये 3 क्वेश्चन, यहाँ से 3 सवाल बनते हैं, 3 नहीं 4 सवाल। वो क्या बनते हैं मैं देखता हूँ, और आप लोग भी गौर से देखो। ये क्योंकि यहाँ पे H+ वैसे ऑलरेडी बहुत सारा प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत सारा क्राउडिंग है, मतलब कि सेम वाला चीज यहाँ पे आने देगा ही नहीं वो लोग। तो ये क्या करेगा कि जो मीडियम पे क्योंकि इसको तो H+ चाहिए, इसको H+ चाहिए, तो क्या करेगा, जो सराउंडिंग में जो H+ है वहां से ये गेन कर लेगा, सराउंडिंग में जो H+ है मीडियम में जो है वहां से ले लेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो मीडियम है उसी सेम वहीं से अगर H+ रीजन नहीं दे रहा हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और मतलब क्या करेगा, ये H+ को, जो मीडियम वाला H+ को लेने के लिए बोलेगा। अब वापस कॉमन समझाओ एक बार। सर कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ना? हाँ, तो बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाने से क्या होगा, तो मतलब क्या ये H+ नहीं टूटेगा ना, हाँ एमिनो सर, से, उसमें डिसोसिएशन अगर कम हो जाएगा। मतलब H+ को रिलीज होने नहीं देगा, मतलब ये वाला H+ तो रिलीज नहीं होगा, तो बचा हुआ सराउंडिंग में तो हाँ सर। H+ है ना, तो इसको तो हाँ हाइड्रोजन चाहिए, सिंस इट हैज लोन पेयर, और वो चाहता है कि मुझे प्रोटॉन चाहिए। बेसेस आर फेमस फॉर देयर प्रॉपर्टी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। यस। क्लियर है क्या बेटा? सबको यस सर। क्लियर है? हम भूमिका, फरहान, समर्थ, सुजाल, तनुश्री, रितिका,
समझ रहे थे। क्लियर है। क्लियर है। हाँ, और क्लियर होना भी चाहिए। अगर ना बहुत लोगों को पिटाई करूँ मैं, याद रखना फिर आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H प्लस रेस करेगा। अच्छा, पिटाई करने से कोई दिक्कत तो नहीं है यार? नहीं सर। नहीं है सर। बिहेव्स एज बेस, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? एमिनो एसिड था, वो बेस की तरह बिहेव करेगा जब हम लोग उसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे। हाँ। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, NH2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इस पे चार्ज तो मतलब पॉजिटिव वो आ जाएगा। एक्सेप्ट करेगा ना, डोनेट नहीं करेगा। हाँ, डोनेट नहीं करेगा। अगर ये किसके, COH या फिर अमीनो ग्रुप? अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट करेगा। हाँ, वो तो डोनेट करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी और खत्म हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। उसी मीडियम में मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, कुछ इस तरह का ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैंने उसमें पुट किया तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब कि NH2 H प्लस गेन कर लेगा, उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे हाइड्रोजन और वेरिएबल ग्रुप का रहेगा ही रहेगा, और COH एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है क्या? सो इट विल, सो अमीनो एसिड इन एसिडिक मीडियम एक्ट्स एज बेस। क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा हम आते हैं किसमें, बेसिक मीडियम पे। लिख लिया आप लोगों ने क्या ये वाला? सर 1 मिनट सर। तो मैं 5:15 तक लीव कर सकती हूँ क्या? 5:15? क्लास कब तो 3:30 से वही देना, 3:30। चलो कोई नहीं, हो जाएगा। ओके सर, उतने में हो जाएगा क्लास। क्या कह रहे हो? तो आपको एक्सटेंड करना तो आप कर सकते हो कि वो जाना पड़ेगा, 5:15 से क्लास है सर। चलो कोई नहीं, हम लोग देख लेंगे। अभी थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ सर। तो ये वाला आप लोग लिख लिया क्या, इन एसिडिक मीडियम? हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक मीडियम पे। बेसिक मीडियम पे क्या होगा, OH माइनस होगा क्या? हाँ। सबको एग्री है इस बात से? हाँ सर होगा। भाई बेस है, उसकी मर्जी, वो H प्लस OH माइनस को देना पड़ेगा ना, तो वो उसी के लिए, उसी काम के लिए है। अच्छा, यहाँ पर OH माइनस है, क्या ये वाला H प्लस रिलीज होगा? हाँ। होगा। इसका मतलब क्या, कि इट विल एक्ट एज एसिड। acts or behaves as acid, means एसिड। since it releases H plus, it releases H plus, तो इसका नया स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरीके का, कि यहाँ पे तो ऑलरेडी OH है और यहाँ पे H है। जब H रिलीज होगा तो क्या ये यहाँ पर जाएगा? सर वो तो H2 फॉर्म करेगा ना। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या जाएगा? जब उसको देने के लिए जाएगा, बीच में बेचारा उसको मिल जाएगा OH माइनस, बोलेगा नहीं पहले मुझे दो, मुझे पहले वाटर बनाओ, और उसके बाद जा ही नहीं पाएगा। वो अपनी तमन्ना करते रहेगा, मेरे पास हाइड्रोजन आ रहा है आ रहा है, वो आएगा ही नहीं। क्यों? कि उसको पहले लेने वाला कोई और मिल गया। क्लियर है क्या? तो सो इट विल एक्ट एज हाँ एसिड। सर। क्या पढ़ने में मजा आ रहा है आप लोगों को? सो इट विल फॉर्म एन स्ट्रक्चर लाइक दिस। अच्छा। सर आप म्यूट हो।
हेलो हेलो, हाँ सर। लिख लेंगे आप लोगों ने? हाँ सर। इट विल एक्ट एज बेस, सॉरी इट विल एक्ट एज एसिड। क्लियर है क्या आप लोगों को? हाँ सर। तो ये होगा इट विल, क्योंकि बेसिक मीडियम में क्योंकि H+ उसको दे नहीं पाएगा और ये किस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ अच्छा, सर। ये वाला हम लोग थोड़ा नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है ना? सबने लिख लिया, डायग्राम बना लिया इसका क्या? हाँ। हाँ। आगे बढ़ो। यस सर। आप लोग डायग्राम वहीं पे कर लो, मैं अलग से कर लेता हूँ। इसमें क्या होगा, जितने नंबर ऑफ H+ होंगे उतने नंबर ऑफ OH- होंगे। क्लियर है क्या? हाँ, इसमें क्या होगा, ये कुछ ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएगा, CO- होगा और एक तरफ NH3+ होगा, मतलब जितना गेन किया उतना लूज भी कर लिया, ये उस तरह का उस तरह का जाएगा। ऐसे कंडीशन जहां पर एक ही मॉलिक्यूल पे दोनों चार्ज हो, ऐसे आयन को बोलते हैं ज्विटर आयन। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया आपके 2017 या 2018 के नीट में, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्विटर आयन, ठीक है? सर ये समझा नहीं मुझे। जितने H+ होंगे उतने OH- भी होंगे। ये न्यूट्रल हाँ। मीडियम है ना बेटा, हाँ सर। दिस इज न्यूट्रल मीडियम। अब भाई ये एसिड है, H+ तो रिलीज करेगा, जब ये H+ रिलीज करेगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि सराउंड हाँ से कोई मतलब है नहीं, सराउंड में जितना H+ है उतना वो देने वाला है नहीं। तो वो ऐसा अमीनो एसिड जो न्यूट्रल मीडियम पे रखने पर बिहेव्स एज न्यूट्रल, तो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल अमीनो एसिड। बोलो ना यार। हाँ सर समझा। यहां पर क्या हो रहा है, उसी कंडीशन पे एक ही आयन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो तो ऐसे आयन को बोलते हैं ज्विटर आयन एंड बिहेव्स एज न्यूट्रल। बोलो यार। और ऐसे अमीनो एसिड को बोलते हैं इस तरह के अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक अमीनो एसिड। बोलो यार, नहीं समझ में आया? एम्फोटेरिक सर अमीनो एसिड। सर पता नहीं क्या क्या बोल के हमारे फर्स्ट फ्लोर से हवा से मैं उड़ के चला गया। बोलो यार। नहीं सर, हेलो हेलो, समझा। क्लियर सबका? हाँ सर। तो आज यहीं पे रखते हैं क्या? अच्छा, कल आप लोगों का कोई मॉर्निंग में क्लास है क्या आप लोगों का, बोर्ड वाले का? सर हेलो। अभी सर सर मॉर्निंग में एग्जाम आप ले रहे ना सर क्लास? हाँ, तो मॉर्निंग में तो मेरा क्लास, जिस दिन कोई क्लास नहीं होता तो मैं लूंगा आप लोगों का क्लास। हाँ सर चलेगा। सर कल सैटरडे है सर, कल क्लासेस हैं हमारे। टाइमिंग क्या है? सर वो नॉर्मल लेक्चर्स रहते हैं सर, टाइमिंग 3 to 7:30। तो मॉर्निंग पे है ना? अच्छा चलो कोई नहीं, मैं सर से बात करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना? और सर हमारा संडे को एग्जाम भी है, तो आप सर सैटरडे छोड़ सकते हैं क्या, फिर आप बाद में चलो कंटिन्यूअसली ले चलो, लीजिए। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। रिवाइज करना भी जरूरी है, आप लोगों को टाइम भी मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ते रहे और खुद, क्योंकि हाँ सर। आपका पढ़ाई जब इफेक्टिव होगा व्हेन विल यू रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज। अच्छा, आपने कभी वो पढ़ा है ना, आपने शायद वो पढ़ा होगा, लिमिट्स वगैरह पढ़ा होगा ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा हाँ सर। बेसिक हाँ। मैथ्स में, हाँ वहां पे सर। पढ़ा है ना कभी लिमिट्स टेंस टू जीरो। यहीं पे मैं कह रहा हूँ कि रिवाइजन और रिवीजन, वहां पे टेंस टू जीरो था ना, यहाँ पे टेंस टू इंफिनिटी, उतना ही आपका सक्सेस रेट ज्यादा होगा। ये मैं कह रहा हूँ, योर एमएन सर। क्लियर है क्या? हाँ रिवीजन सर। जितना करोगे उतना आपको इफेक्टिवनेस आएगी, उतना क्लैरिटी आएगी और उतना आपको सक्सेस रेट ज्यादा होगा। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। याद रहेगा क्या?
हाँ यस सर सर लेकिन ध्यान रहे रिवीजन हमेशा अच्छा इफेक्टिव स्टडी और स्मार्ट स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं किताब खोल के बैठे हैं और टाइम पास हो रहा है, नहीं। जो मैंने अभी पूरा जो भी 1.5-2 घंटा पढ़े हम लोग, ये आधे घंटे 30 मिनट 40 मिनट में पूरा का पूरा जो पढ़ाई सब हो जाना चाहिए रिवाइज। इसे बोलते हैं इफेक्टिव और स्मार्ट स्टडी। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ आज के लिए सर इतना रखते हैं। किसी को कोई डाउट है? नहीं बात सर है कि आप लोग डीपीपी सॉल्व करते रहो। कभी फिर जब फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पूरा फिर डीपीपी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर हाँ सर। थैंक ओके यू। सर थैंक बाय यू सर। बाय बाय सर सर थैंक यू सर थैंक यू। बाय सर थैंक यू सर